Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So this is our class on preamble. We are going to understand the facts around preamble, and then we are going to see the mains questions and the recent controversies relevant for your exam around the topic of preamble. Preamble से पहले एक quick recap of the things that we had covered yesterday. Doctrines के बारे में हमने समझा था, बहुत ही फटाफट से आगे बढ़ेंगे जल्दी से. एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, डॉक्ट्रिन्स में हमने ये समझा कि 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो उनके अराउंड ये सब चीज़ें हैं. लेजिस्लेटिव प्रपोजल, preamble, preambular prism, everything has to be seen through the prism of preamble to the Constitution of India. Then doctrine of judicial review. Judiciary does the review of parliamentary laws, executive rules and judicial decisions. Right, let me just log into my account to keep an eye on comments. So this is there, right? Judiciary and doctrine of judicial review. Judiciary does the review of its own judicial decisions. Rest of the details on judicial review in the chapter judiciary. Then we saw doctrine of colorable legislation. Then we saw the doctrine of eclipse, which is relevant for the purpose of our fundamental rights. Doctrine of eclipse. This slide was shown to explain these things. फिर उसके बाद हमने ये समझा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस. कुछ पॉइंट्स, some of the aspects related to these rights and the categorization of these rights you would be able to understand a little later in the next few classes, right? So this is their being human वाली चीज़ पे हमने इसे ख़त्म किया था. अब आगे चलते हैं फटाफट से. जिनको नहीं पता, एक क्विक रीकैप फटाफट से कर दिया था ताकि आपको याद रहे कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं. Just 1 minute. So preamble, if you want to understand the philosophy of the Constitution of India, we are going to cover it from books like Fadia and Fadia for Public Administration. MP सिंह की एक बुक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस अच्छे से कवर्ड है. तो ये सब बुक्स जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए कवर की जाती हैं, इस टॉपिक को कवर करने के लिए, वो सब बुक्स भी हम कवर कर रहे हैं. बट अभी इसका जो फैक्चुअल पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, टू अंडरस्टैंड द कीपिंग इन माइंड द डेमोग्राफी ऑफ द क्लास and keeping in mind the fact that this is just our 4th or 5th class, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी मैं बेसिक कॉन्टूर्स ही इसके समझाऊंगा. फिलॉसफी में जो हायर लेवल की थिंग्स हैं that we will be able to come across once we would have covered the salient aspects of the basic foundation level of Indian polity, right? So this is their preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purposes एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया. क्यों किया? कि हम जब अपने भारत का, इंडिया का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमी में जो चीज़ें हमने देखी कि इकोनॉमिक ग्रोथ यदि होगी तो किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली ग्रोथ होगी, जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनी कोएफिशिएंट को, ऊंच नीच के फासले को दरकिनार करते हुए हम सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो ही होते जाएंगे, ग्रो ही करते जाएंगे, लेकिन हम इनइक्वालिटीज़ को ब्रिज कर पाएंगे या नहीं, इन जस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं. तो द होप्स एंड एस्पिरेशंस, वी क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल as well as the ideals before our nation are described in the preamble in very clear and succinct words. It may be considered as the heart and soul of Constitution, right? Conscience of the Constitution. The preamble can be referred to as preface, as the preface which highlights the entire Constitution. Preamble can be referred to as the introductory few pages of the Constitution. Clear? Introductory few pages. Am I creating an obstruction in the way of reading?
सो ये चीज़ें हैं. देन उसके बाद इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 फॉर स्टेट PCS रिलेटेड थिंग्स, और समटाइम्स दे आस्क दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू ऑल्सो. तो जब हम बड़े हो जाते तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए by the Constituent Assembly, and came into effect on 26 January 1950. Or we the people of India, having solemnly resolved, having made a solemn promise to ourselves to constitute India into a socialist, secular, sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो ये क्या है? Adjectives हैं. Word क्या है? Republic. What is the meaning of republic? Where the people are governed by the representatives of the people, where the public is governed by the representative of the public herself or himself, where there is no king or queen. That makes that country or system a republic system. Okay, representatives of the public are representing the public. We made a solemn promise to ourselves, we made a resolve, we made a vow that yes, we are going to govern ourselves, we are going to form India into a number one. Adjective number one, sovereign. Number two, socialist. Secular. Secularity पे, secularism पे आज सुबह एक editorial analysis हमने देखा. ठीक है, तो जब तक कोर्स शुरू नहीं होता करंट अफेयर्स का तब तक DNA के साथ में रेगुलर रहोगे. डेमोक्रेटिक थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड देन दिस इज फिफ्थ. रिपब्लिक. To secure to all its citizens justice, which is going to be social in nature, economic in nature and political in nature, right? अब एक बार फटाफट से क्वेश्चंस भी इस पे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, so that you keep an eye as to what is happening in the polity. Constitution theory है, ठीक है. Previous year question, discuss each adjective. That is why I was numbering them 1, 2, 3, 4 and 5. आज इसका एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी हैं और केशवानंद भारती केस, देन मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस. शुड दीज वर्ड्स बी डिलीटेड? अमित शाह का एक स्टेटमेंट था 2015 में, अभी भी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं. इज आवर पॉलिटी लिविंग अप टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दिस इज द रीहैश ऑफ द सेम थिंग. तो जो मेंस ओरिएंटेड चीज़ें डिस्कस करनी है इससे रिलेटेड अब हम शुरू कर सकते हैं. नाउ दैट यू नो दी ABCD ऑफ दीज थिंग्स. क्लियर? सो दिस इज देयर. देन ये सेक्युलरिज्म क्या है, और डेमोक्रेसी इज अ टू वे रोड, वोटिंग एंड कॉन्टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी एडजेक्टिव वुड बी कवर्ड. सो व्हेन आई फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, डू नॉट एज्यूम टू मच ऑफ योर सेल्फ कि ये आता है, ये क्या करना है, क्योंकि पेपर में जो है साम सूंघ जाता है. इसीलिए थोड़ा सा जो है समझना होगा इनको, और मेमोराइज कर सकते हो तो यहीं पे करो, अच्छी बात है. क्लियर? जस्ट 1 minute. So here we were. Preamble. Republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political. Number 1. ठीक है. Number 2, liberty. अब जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक जस्टिस इज मैं भी इक्वल, आम आदमी भी इक्वल और अदानी भी इक्वल. अंबानी और आम आदमी और अदानी में कोई फर्क नहीं होगा. ये इकोनॉमिक जस्टिस है? नहीं. इकोनॉमिक जस्टिस की कॉनोटेशन ये है कि opportunities for advancement should be equal to everyone. Opportunities to grow should be equally available. ठीक है. तो इकोनॉमिक ऐसा नहीं है कि लाइसेंस जो है 2G स्पेक्ट्रम का वो सिर्फ 22G को मिलेगा. समझ में आया? कोई और भी अगर लेना चाहे तो कंडीशंस ऐसी क्रिएट करी जाएं सरकार द्वारा या स्टेट द्वारा, नेशन स्टेट द्वारा, एवरीबडी इज एबल टू ब्लॉसम टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ हिज और हर कैपेबिलिटी. और वी शुड बी एबल टू अनलीश द पोटेंशियल आउट ऑफ द पेटी ह्यूमन बींग्स. तो स्टेट का मतलब ही यही है कि गरीब लोगों का उत्थान करेगी, अमीर को तो कोई ज़रूरत नहीं है. प्रियम्बल की फिलॉसफी से ये बात क्लियर होती है, साफ होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का. लिबर्टी ऑफ नॉट ओनली थॉट में सोचा कि मैं ये बोलूँ कि मैडी पागल है, राइट? नहीं, एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ मैं, कार्टून भी बना सकता हूँ किसी भी चीज़ का. बिलीफ, व्हाट डू आई बिलीव? आई कैन राइट अ बुक.
कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहती है। वो अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उन बुक्स को जला देंगे, फाड़ देंगे, ये सब कर देंगे, ठीक है, तो दे विल टीयर ऑफ दीज बुक्स। फेथ एंड वर्शिप, एक्सप्रेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ creating the naked or nude idols of Indian Hindu Indian deities, ठीक है, जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां बना डाली एम.एफ. हुसैन ने। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड यू कैन एक्सप्रेस योर लिबर्टी ऑफ थॉट इन एनी फॉर्म। पेंटिंग्स, एम.एफ. हुसैन ने ये सब करा कि उनकी पेंटिंग्स वगैरह पेंट कर दी, किसी मूर्तिकार ने कुछ ऐसी मूर्तियां बना दी तो उसको मार दिया गया, वो पॉलिटी का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, liberty of belief, faith and liberty of worship. If I want to worship a stone, I can do so. Equality of status and of opportunity. Equality of status and of opportunity. ये equality of status होता क्या है? When you go to some Hyatt hotel or some Wahayat hotel, जो भी कह लो, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है rights of admission reserved. Is that equality of status? We are going to see the analysis around these type of points, ठीक है। ये है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब। अगर किसी गरीब आदमी की पॉकेट में पैसे हैं तो आप उसको होटल में एंटर करने से नहीं रोक सकते। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, बड़े बड़े होटल्स के बाहर एयरलाइन कंपनीज जो है अपने एयर हॉस्टेसेस को ट्रेन करते हैं कि anybody with the shoddy clothes should not be allowed to enter. Even if the people with bad character, if they are applying enough of itar, disregarding their charitra, you have to allow them, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, द वे इट पैन्स इटसेल्फ आउट, द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द इंडियन पॉलिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना पैदा करना। आजम खान, मिस्टर मोदी, अमित शाह यही तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं इसी काम में, पता नहीं सदियों से लगे हुए हैं, 2 जन्म कम पड़ जाएंगे इनको। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पॉइंट इज दीज थिंग्स आर जस्ट decorative words. Our political parties, the system, the political system is working in a direction contrary to these things, ठीक है, उसे समझेंगे धीरे धीरे से। In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये preamble में ये चीज़ें लिखी गई। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, कि हमारा रिपब्लिक कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, सेक्युलर हो, सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो। बेसिक मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी 2 मतलब है। देयर आर 2 connotations of sovereignty given in the constitution or as implied in the constitution. We are the supreme power. We are independent. We can guide our foreign policy to suit our interest, to suit our fancies, to suit our whims and comfortabilities. Is it true? Then what is USA doing in the Indian Ocean? What is China doing? Why are we buying so much of weaponry, so many weapons, right? Even as poverty is all pervasive, all visible. गरीबी दिख रही है, उसके बाद भी महंगे महंगे वेपन्स खरीदने पड़ रहे हैं। दूसरी कॉनोटेशन जो सॉवरेनिटी की है, मैंने उसका ग्लिम्प्स दिया था। Individual is the sovereign. Prime Minister or Minister, as he says that he is the Pradhan Sevak. I am the sovereign. You cannot snatch my fundamental rights. मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते आप मुझसे। Clear? Is it implementable or is it getting implemented today? No. Right? People like Ravish Kumar have to fear for their lives. तो समझ जाओ, ठीक है। Individual sovereignty, it is mentioned. ये 2 connotations है इसकी, ठीक है। एक national sovereignty, we are no longer under British dominion, we are no longer under British control. Second, we are individual, as an individual, as a part of this country, we are the source of supreme power. Our vote is the source of every power, every atom of power being exercised by the political class, the executive politics और जो भी, ठीक है, the administration, IAS जो भी, तो उनकी सोर्स का पावर का सोर्स जो है हम हैं। इसीलिए सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट लाल बत्ती बैन कर देगा, रेड बीकन बैन,
कि सॉवरेन को आप डराते हुए टू करते हुए नहीं चल सकते, ठीक है, इसलिए रेड बीकन पे बैन लगाया गया. एवरीथिंग दैट इज सेड बाय जुडिशरी, एवरी लॉ दैट इज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फाइंड्स इट्स सोर्स in even at least minute thing. It's somewhere even a minute thing as simple as word sovereign can be magnified, it can be amplified in its magnitude to mean these things. Socialist pattern of society means that the basic criterion for determining the lines of advance must not be private profit but social gain. इसीलिए since we were under the British Raj for around 200 years, so our constitution makers had faced the tyranny of capitalism, private profit. The greed leads to the bleed of the poor. Greedy profit making leads to deprived poor class. इसीलिए socialism की lines को सोचा गया. The word socialist was not there in the original constitution. It was inserted by Indira Gandhi government in 1970s. The period of 1970s is called as heyday of socialism in India. Heyday मतलब हिपे फुर्रे वाला पीरियड था. Socialism was at its peak. Private banks को nationalize किया गया, यानी कि nationalize का मतलब acquire कर लिया गया. क्यों? गरीबों को लोन नहीं दे रहे थे ये प्राइवेट बैंक्स. अगर प्राइवेट बैंक किसी इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट का था तो आज के आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर की तरह अपने पति को एम्पावर करने के लिए वो आईसीआईसीआई बैंक, उस टाइम के जो प्राइवेट बैंक्स थे, वो अपने पति, भाई, भतीजा, इन सबको लोन देते थे. पैसा कलेक्ट किया जाता था मिडिल क्लास वर्ग से, मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, और दिया जाता था अमीरों को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. इसीलिए गरीबी हटाओ कैंपेन लेके आई इंदिरा गांधी, तो इन्होंने सोशलिज्म इंसर्ट कर दिया एज अ डेकोरेटिव वर्ड. आगे देखेंगे कि सोशलिज्म आज बावजूद इसके कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. विल कीप एन आई डिस्पाइट बीइंग रिटन, डिस्पाइट बीइंग इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट बीइंग ऑब्जर्व्ड टुडे? क्लियर? सो दिस इज देयर. तो सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है. समझ में आ गया बेसिक मीनिंग क्या है? सॉवरेनिटी, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी अ सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो सॉवरेन, सोशलिस्ट. डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट करेगी. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, कितनी मेडिसिन बनेंगी. पहले क्या होता था कि आपके घर के आसपास, कभी किसी ने सुना हो, पंजीरी प्लांट्स होते थे जहाँ पे माइल नरिश्ड मदर्स को फीड करने के लिए, बच्चों को पोषण देने के लिए सरकार पंजीरी बनाती थी. पार्ले जी कितने बिस्किट्स बनाएगी, ये भी 1990 से पहले सोशलिस्ट फिलॉसफी को ऑब्जर्व करते हुए गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. तो ये सारी चीज़ें. एंड दैट द पैटर्न ऑफ development and the structure of socio-economic relations should be so planned that they result not only in appreciable increase. Pattern of development, planning या structure of socio-economic relations कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से रणनीति बनाई जाए कि इसका जो रिजल्ट निकले, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ही नहीं, इंक्रीज इन जीडीपी ही नहीं, बल्कि इन द ग्रेटर इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. प्रियम्बल के कुछ प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ और प्रिंसिपल जो कि सोशलिस्टिक हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, सम ऑफ द adjectives given in the preamble are sought to be implemented by fundamental rights, and some other are sought to be implemented through the implementation of directive principles of state policy. Secular. The word secular was also not there in the original constitution. Okay, so it was inserted by again Indira Gandhi government, 1970s. In India, we have positive concept of secularism, whereas in the Western democracies, we have negative or exclusivist concept. How many of you have seen today's DNA, the editorial analysis on which the editorial on federalism, on which I had spent around half an hour? बोलो फटाफट, फटाफट जल्दी. नॉट मी लिखो फटाफट जिन्होंने नहीं किया. एनएम लिख दो, एनएम.
Not me, not seen. Very nice. Nice, मिथिलेश. तो उसे देख लेना, ठीक है. आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज जिस दिन इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं उनको एनालाइज ही नहीं करता. फीडर काइंड ऑफ फिलर स्टफ जो आजकल आ रहा है उसको स्किप करके मैं सिर्फ रेलेवेंट ही आजकल एनालाइज कर पा रहा हूँ. तो ओपोजिट एसआर बोमई, सेक्युलर स्टेट में यहाँ पे मतलब ये है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का. अगर मेरे देश में सीधी सीधी बातें, शेडिंग ऑल योर प्रेजुडिसेस, कीपिंग ऑल योर प्रेजुडिसेस असाइड, अपनी जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं या धर्म भावना है उसको साइड में रखना 10 मिनट के लिए. अगर भारत में, इंडिया में 80 करोड़ हिंदूज हैं, अगर 80 करोड़ हिंदूज 1 रुपी ईच डोनेट करें तो कितने हो गए 80 करोड़ रुपीस, यानी कि दे कैन बाय द लैंड फॉर टेम्पल. भारत में कितने, इंडिया में कितने क्रिश्चियंस हैं? 2-3 करोड़, राइट, 5 करोड़, मतलब कुछ ऐसा मान के चलो, ठीक है. तो 80 करोड़ इंडियंस हैं, 14 करोड़ मुस्लिम हैं. अगर मुस्लिम्स पैसा डोनेट करें तो मुस्लिम्स के पास 14 करोड़ आ जाएंगे, एक छोटा मस्जिद बन जाएगा. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये है स्टेट कैन डोनेट मनी टू ऑल द रिलीजन्स इक्वली. इसका फायदा माइनॉरिटीज को ज्यादा मिलता है. अमेरिका में, फ्रांस में नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है. नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब यह है गवर्नमेंट सेज अ स्ट्रिक्ट नो टू द रिलीजियस इश्यूज. डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट डोनेट इवन अ सिंगल डॉलर टू द चर्च, टू क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस और टू इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और टू हिंदू इंस्टीट्यूशंस. क्यों? वहां पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट कीपिंग एन आर्म्स डिस्टेंस from the religious affairs, right? नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ये है कि रिलेशन दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट कुछ करेगी ही नहीं. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ये है जो आज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है कि स्टेट करेगी तो, लेकिन सभी रिलीजन्स के लिए बेटर, सभी रिलीजन्स के लिए इक्वली एमेलियोरेटिव या प्रोमोटिव स्टेप्स लिए जाएंगे. इसीलिए आप देखोगे कि कुछ एक एरियाज होते हैं हर टाउन में जिन्हें नॉर्थ इंडिया में शामलाट कहा जाता है. शामलाट मतलब द पब्लिक प्लेस. मस्जिद के लिए भी आप अपने टाउन में देखोगे कि एक कोने में मस्जिद है तो दूसरे में मंदिर, तीसरे में गुरुद्वारा. हर छोटी बड़ी सिटी में, ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी यू विल फाइंड दिस. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हर रिलीजन के लिए लैंड एलोकेट करती है इक्वली. अगर हिंदूज चाहें तो 80 करोड़ रुपीस खर्च के कलेक्ट करके अपना मंदिर बनवा सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम मंदिर और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस. लेकिन अगर सिख चाहें तो ऐसा नहीं कर पाएंगे. अगर जैनिज्म चाहें, जैन फॉलोअर्स चाहें, वो भी नहीं कर पाएंगे. इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज व्हाट हेल्प्स इंडिया इन प्रिजर्विंग इट्स डाइवर्सिटी. Clear? Got it? तो ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ओपोजिट टू थियोक्रेटिक स्टेट. थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट. द स्टेट विच प्रोफेसेडली, द स्टेट विच outwardly declares or officially declares one of the religions as its official religion. Saudi Arabia, Pakistan, इन्होंने इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे हिंदूज का परसिक्यूशन हो रहा है. बलोचिस्तान में बलोच लोग जो हैं उनका परसिक्यूशन हो रहा है. हिंदू फैमिली, सिख फैमिलीज को रात को अगवा किया जाता है और सुबह खत्म, मार दिया गया, राइट? तो हमारी कंट्री ऐसे चीजों में बिलीव नहीं करती. सर्वधर्म संभव. नाउ पैरेलली लेट्स ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहती है? सर्वधर्म संभव. ऑल द रिलीजन्स आर पॉसिबल ऑन द लैंड ऑफ इंडिया. सभी रिलीजन, सभी धर्म यहां पे संभव है. क्लियर? तो सर्वधर्म संभव की बात हो गई. और जो हम बाकी की चीजें देखने जा रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, फिर दोबारा से हम पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे कि क्या आज भी हम एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के
एथोस पे कायम हैं? आर वी स्टिल लिविंग अप टू द आइडियल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन और इथोस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन? सर्वधर्म संभव, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, राइट, और वर्ल्ड इज अ फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम जो भी कहा जाता है, ठीक है. रिपब्लिक, अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल and their elected representatives. So India is a republic. Britain is not a republic. Britain is not a republic because there is a queen which is not elected. Even though indirectly elected, our president of India is at least elected representative, right? Head of the state is elected or nominated by the people through any means. ठीक है, तो इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होती है. अब प्रिंस चार्ल्स यदि कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो भी वो प्रिंस हैं तो किंग बनेंगे ही, ठीक है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. क्लियर? यहाँ पे अगर कोई लीडर का बेटा कुछ गलत कर देता है, जैसे कि मनु शर्मा केस और ये सब, तो उस नेता की भी कुर्सी चली जाएगी. तो ये अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल. डेमोक्रेसी जिन्होंने मनु शर्मा नहीं देखी, नो वन किल्ड जैसिका और ये सब मूवीज उस पर बनी हैं. A democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty. That is, people will decide how they want to be governed. Government of the people, for the people and by the people. वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हो गया, डबल एफ हो गया है, ठीक है, दूर. गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फार अवे फ्रॉम द पीपल, ए बन गया है, ठीक है. एंड गवर्नमेंट बाय बाय द पीपल, राइट, गुड बाय हो गया है यहाँ पे. तो दिस इज व्हाट यू कैन स्टार्ट योर एसे विद. और ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, बट बी केयरफुल. अगर एग्जामिनर जो है मेरी तरह होगा तो वो अच्छे मार्क्स देगा क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर कर जाता है. तो जो क्रिटिक्स हैं इंडिया में डेमोक्रेसी के, क्योंकि पीपल, अगर कोई ऐसे टॉपिक ऐसा आता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलता है कि पीपल, द नेताज आर अलूफ, नेताज आर नॉट एबल टू कैच द नर्व ऑफ द पीपल, और करप्शन बढ़ रहा है, तो ये कोट को आप इस यूफेमिस्टिक वे में यूज कर सकते हो. डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है. एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पे पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इन केस ऑफ स्वीडन एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. वहां पे जब भी कोई लॉ पास होता है तो लोगों के द्वारा लॉ इनिशिएट भी किया जा सकता है. लोग लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स पार्लियामेंट को भेजते हैं, और अगर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको साइन कर दिया, किसी भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल को, मैंने एक लॉ बनाया और 10,000 पीपल हैव साइंड ऑन इट एंड इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ स्वीडन, तो दे हैव टू कम अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बिल इन द पार्लियामेंट, राइट. तो ये वहाँ पे प्रावधान है. या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल अगर सरकार वहाँ पे लेके आती है तो सिर्फ कैबिनेट ही नहीं, पीपल्स कैबिनेट, यानी कि लोगों को वो रेफर किया जाता है, जिसे हम रेफरेंडम कहते हैं. रेफरेंडम मीन्स ऑल द लेजिस्लेटिव मैटर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स आर रेफर्ड टू द पीपल. क्लियर? In direct democracy, the people exercise their supreme power directly, as is the case in Scandinavian democracies. In indirect democracy जो कि हमारी डेमोक्रेसी है, 5 साल के लिए वोट दे दिया, उसके बाद गुड बाय. उसके बाद नेता जो है अगली बार दिखेंगे, फॉर्च्यूनर अगली बार आएगी इलेक्शन से पहले, अनलेस ऑफ कोर्स बीच में कोई स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस नहीं हो. तो ये है इलेक्शंस का फंडा. क्लियर? ये डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन वाली बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान से सुनो. क्लियर? यस, यूपीएससी करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो यहाँ पे यूपीएससी देने की जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग क्या करते हैं, अखबार बाद में पढ़ते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्सरसाइज देयर ओन पावर themselves by initiating legislative proposals. जैसे ब्रेक्जिट किया गया, फॉर एग्जाम्पल when Brexit legislative proposal was brought about, तो Britons, the people, the population of Britain, they had to sign it, they had to they had to give their verdict on it. They were given the opportunity to present their viewpoint, and people of Britain, they accepted it, right, to by a marginal victory. कि लोगों ने कहा, 51% से ज़्यादा लोगों ने कहा yes,
हमें ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट चाहिए, तो उसको पार्लियामेंट में लाया गया। क्लियर? हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को आपकी असेसमेंट के लिए नहीं दिया जाता, सीधा ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ, 2 घंटे डिस्कशन हुई, पास। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कुछ फ्लॉज हैं, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक बार इन चीज़ों को हम समझ लें, फंडामेंटल राइट्स को, तब हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर सेल्फ सर्विंग। पहले प्रधान सेवक हो जाते हैं, फिर बाद में प्रधान मेवक हो जाते हैं। मेवक समझते हो, जो सारा मेवा खुद ही खा जाता है, जो चूहा, उसको मेवक बोला जाता है। अभी अभी बनाया ये वर्ड, अगर चेक कर लेना हिंदी कोश में है कि नहीं, समझ रहे हो? तो पहले प्रधान सेवक होते हैं, फिर बाद में दे बिकम सेल्फ सर्विंग। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप्स, पार्लियामेंट्री and presidential. More on parliamentary and presidential after discussing these things in detail. क्योंकि आपको अप्रिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, मुझे फ्रेगमेंटेड वे में चीज़ें समझानी पड़ेंगी, इसीलिए इसी फॉर्मेट में जो कि 20-25 क्लासेस में आजमाया जा चुका है, उसी में ही चीज़ों को आगे कैरी करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंडर विच the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. This is what we should be able to appreciate now. Justice. The term justice in the preamble means 3 distinct forms of justice: social justice, economic justice and political justice. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट्स द्वारा दिया गया political justice, fundamental rights, they confer upon you the political justice. Prohibition of discrimination on the basis of race, caste, right to vote, right to freedom of speech and expression, these are political dimensions of justice. Economic justice is the example that I gave you. Can you barge into the door of a good hotel without thinking about your clothes? Can a poor street child barge into the door of McDonald's without wearing good clothes, even though he has got sufficient number of coins? Economic justice. Can I, being a person of integrity और जो भी है, ठीक है, clean image, can I dare to contest elections? I do not have 25 crore rupees. Clear? Can a person who is SC or ST, who belongs to, with due respect, scheduled caste and scheduled tribe community, can he think of contesting elections? Clear? The fact that nota, now my analysis comes here, none of the above options is used the maximum in these constituencies. None of the above option का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को जब रिजर्व, इसलिए अभी थोड़ा सा समझना, जिन्हें समझ में आएगा ठीक है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ उसी कैटेगरी के, उसी कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाते हैं जिनके लिए वो रिजर्व करी गई है। लेकिन वोटिंग जो है जनरल पॉपुलेशन करती है। इलेक्टोरेट्स सेपरेट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड हैं। इलेक्टोरेट का मतलब वोट देने वाले वही हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम वोट करेंगे या एससी कम्युनिटी में सिर्फ एससी ही वोट करेंगे, नहीं। अगर मैडम मायावती, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, अगर कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शंस किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसे एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया गया है, वहाँ की जनरल पॉपुलेशन भी उनके लिए वोट करेगी। अब होता यह है कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एससी कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, लोग वहां पे सबसे ज़्यादा जो बटन प्रेस होता है नोटा का, सबसे ज़्यादा इन एरियाज़ में होता है। यहाँ पे मान लो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं मैडम मायावती, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, तो इनको सबसे ज़्यादा वोट्स बीएसपी को मिलेंगे, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन है वो नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सारे जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो एससी कम्युनिटी से होंगे। तो यहाँ पे नोटा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग ये कहते हैं कि इलिटरेट, अभी कमेंट चल रहे थे ना कुछ कंट्री में वी हैव गॉट वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन हु आर इलिटरेट, बट दे आर पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट. They are smarter than the bureaucrats in the making, or even the IAS officers cannot understand this very easily, but they will understand
कास्ट एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत फास्ट समझ आती है, राइट? तो ये लोग समझते हैं। तो ये क्या है? सोशल इनजस्टिस के पहलू हैं, समझ में आया? सोशल इनजस्टिस के, क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। इस क्लास को वाइंड अप करना है प्रीएम्बल को, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास ऑन प्रीएम्बल एलोकेटेड फॉर द टॉपिक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा। पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट एवरीबडी, देखो डेमोक्रेसी अगर टू वे रोड है तो मैं इलेक्शन कास्ट वोट कास्ट तो कर सकता हूं, बट मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। तो डेमोक्रेसी लाइक द नेशनल हाईवेज इन इंडिया इज अ टू वे रोड, ठीक है? आप जा सकते हो और आ भी सकते हो, लेकिन आप ये डेमोक्रेसी जो एक्चुअल में है वो क्या है? सिर्फ वन वे रोड है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले वही रहेंगे, पहले राजेश पायलट थे, फिर सचिन पायलट आ गए, और हम सिर्फ पैसेंजर्स ही रहेंगे, ठीक है? वो अलग बात है कि पायलट आगे चल के केरला की तरह राजस्थान की सरकार का विमान भिड़ा देगा, वो एक अलग बात है, समझ में आया? उसके बाद अलग चीज़ है कि ये लोग बार बार डिनेस्टिक पॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। डिनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब समझते हो? No, that is not the case, Srishti. It does not mean that only those constituencies are reserved. Constituencies are reserved on rotational basis. Okay? उसके पीछे कुछ और reasons हैं, वो भी हम समझेंगे। Political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government. तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट टू इक्वालिटी का पहलू भी इसमें आ जाता है कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये थोड़ी है कि प्रोहिबिशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया है कि पॉलिटिकल जस्टिस है, बट अगर पॉलिटिकल जस्टिस होता तो आज आज़ादी के 70 सालों के बाद सबरीमला टेम्पल की लड़ाई नहीं चल रही होती। विमेन आर स्टिल फाइटिंग। लेटर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबरीमला विमेन एंट्री बैन नहीं है, बट आज भी बैन चल रहा है। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं, द फाइट बिटवीन द रिलीजन, द डिस्प्यूट बिटवीन द रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस मीन्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस के 2-3 पहलू हैं, एक कास्ट, एक एफिशिएंसी। अगर एक पर्सन पुअर कास्ट को या बैकवर्ड क्लास को या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को बिलोंग करता है बट वो एफिशिएंट है, तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन सो कॉल्ड हायर कास्ट को बिलोंग करता है और वो इनएफिशिएंट है, तो वो पुअर पाया जाना चाहिए, ठीक है? कैपिटलिज्म का एक फायदा ये है कि वो ये कास्ट क्लीवेजेस को, कास्ट डिविजन्स को क्लास डिविजन्स में बदलता है। समाज में, सोसाइटी में अगर प्रगति, अगर एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो द सोशल प्रोग्रेशन, द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वुड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, स्क्रीचिंग हॉल्ट एज वी कॉल इट, ठीक है? जैसे ट्रेन रुक जाती है तो वैसे प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए पुअर और रिच का ये जो डिफरेंस है इसे रिकॉग्नाइज करा जाता है। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट एनेबलिंग कंडीशन फॉर रिच टू बी और फॉर पुअर टू कम इक्वल टू द लेवल ऑफ द रिच, बट इफ रिच इज रिसीडिंग डाउन इट इज हिज फॉल्ट। या तो वो दारूबाज है या फिर वो बेकार है, तो वो उसकी गलती। मतलब समझ में आया? अगर कोई हायर कास्ट है, अगर वो गिरते चले जाता है तो वो उसकी गलती, लेकिन सरकार इनके लिए एनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट करती है। बीइंग ह्यूमन के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए एक समान कंडीशंस क्रिएट करेगा हमारा राजतंत्र, हमारा स्टेट कॉल्ड नेशन स्टेट ऑफ इंडिया, क्लियर? इन बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन आज भी हम देखते हैं 14 दिनों में गौरापन, जो 14 दिनों में गोरेपन की बात होती है, फेयर एंड लवली, वो चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है? और स्कूटी की भी जैसी एड्स आती हैं, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल दी फन, तो वो पॉजिटिव साइड पे ले सकते हो। रेसिज्म कलर के बेसिस पे, ठीक है? कास्ट, कलर, ये सारी क्लेवेजेस आज भी देखी जाती हैं। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो बातें प्रियम्बल में लिखी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं किसी ना किसी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 38 for example here, it means the absence of privileges being extended to any particular section of the society. Social justice का मतलब ये है कि
अगर कोई किसी एक्स कास्ट के घर पे पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं उसको वो प्रिविलेजेस मिलेंगी, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। बट उसे जस्टिफाई कर दिया जाता है कि पायलट जो है इलेक्शन जीत के आए हैं तो ठीक है, वो क्या है, मेरिट रखते हैं या फिर वो एलिजिबल हो गए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, बट वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। ये अलग बात है कि थियोरेटिकली राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन बिना बाहुबली के इलेक्शन या बिना पैसे के इलेक्शन कोई कैसे जीतेगा, इसके लिए रास्ते क्लियर नहीं हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। स्टेटेडली बात समझना, यहाँ पे मैंने पिछले दिनों एग्जांपल दिया था सेट टॉप बॉक्स और टाटा कंपनी के लिए एनालॉग केबल टीवी को जब रिप्लेस करके सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट टीवी और ये सब जो सिस्टम आया, तो उसमें ये कंडीशन रखी गई कि आपके पास पहले केबल टीवी ऑपरेट करने का लाइसेंस या एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी जाती हैं वो ऐसी रखी जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं लोगों को मिलेगा। रोड के, सड़क बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऐसी रखी जाती हैं कि जो बिडिंग का या टेंडर जो भर पाएगा वो वही होगा। अगर मान लो किसी मंत्री के बेटे के पास 4.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल की कंडीशन को 4.5 साल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल गंगा जल मूवी, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम वहाँ से जो मूवीज़ बनती हैं वो यूपीएससी, सोसाइटल इश्यूज़ रिलेटेड जो मूवीज़ हैं वो यूपीएससी के थीम्स अच्छे से उसमें कवर होते हैं। आर्टिकल 15 और ये सब हमारे ही सिलेबस से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आज ये मूवीज़ देखने जाओगे तो आप पहले ही बता दोगे कि अब आयुष्मान खुराना उसमें क्या करेगा और अजय देवगन गंगा जल में क्या करेगा। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक्सप्लिसिटली इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, बस ये जरूरी है, लेकिन इम्प्लिसिटली इफ यू डिग डीपर इनटू दैट कंडीशन व्हिच हैज बीन केप्ट एज अ सीलिंग, यू वुड फाइंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को बिना बना के, रास्ता बना के ऊपर चढ़ने के रास्ते बंद किए जाते हैं। समझ में आया? ऊपर जाने के रास्ते, इफ यू वांट टू क्लाइंब अप द लैडर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देयर आर सर्टेन सीलिंग्स हियर व्हिच आर नॉट विजिबल explicitly as economic factors, but they are camouflaged in some other way. They are presented across as if yes, it is a technical condition required to get the license, but even the private companies with the licenses, the so called experiences, have not been able to fulfill those contracts. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, जो गरीब बच्चे होटल्स में एंटर नहीं कर पाते, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग inequalities. What is more glaring and irritating than the child who is knocking at your vehicle's glass when you are standing at a traffic signal? तो अभी तक हम 70 साल हो गए और 70 बहाने हैं कि हमने ऐसा इसलिए नहीं किया, ऐसा कांग्रेस की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो कुछ भी हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, नोट डाउन दिस टर्म इन योर नोट्स, ये गरीबी दूर नहीं हुई है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इसमें दे रखी हैं। इसका ये मतलब है, इसे पढ़ोगे आज बहुत अच्छे से। अब आपकी हार्डकोर क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये जो कल हमने देखा था, सॉरी, just 1 minute guys. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। हमारे यहाँ पे पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो क्या कॉन्सेप्ट था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की, द स्टैच्यू ऑफ लॉ इज
her eyes are blindfolded. The eyes of the statue of law are blindfolded. आंखों पे काली पट्टी बंधी रहती है. ये बोला जाता था कि कानून के सामने ये जो तराजू है, the physical balance, उनके हाथ में जो है, वो जो इंसाफ कर रही है कानून की देवी, उसकी वो आंखों से नहीं देख सकती, राइट? तो शी कैनॉट सी. शी विल प्रोवाइड दी स्केलर जस्टिस. स्केलर जस्टिस होता है बिना सामने खड़े व्यक्ति के हालात को ध्यान में रखे गए किया गया जस्टिस. यानी कि यहाँ पे बीइंग ह्यूमन है. इनका केस जो फाइट कर रहे थे वो थे राम जेठमलानी, जो कि अब नहीं रहे, ठीक है? अ क्रिमिनल लॉयर. तो ये एक टर्म बहुत अच्छा है. जो लॉयर्स क्रिमिनल्स का केस फाइट करते हैं उनको क्रिमिनल लॉयर कहा जाता है. कभी कभी ये ऐसे सोचने लगता है कोई इंसान जो बिगिनर है यूपीएससी में, अच्छा लॉयर भी क्रिमिनल होते हैं क्या? द पीपल हु रेस्क्यू दिस क्रिमिनल्स आउट ऑफ द लीगल टैंगल्स, दे आर कॉल्ड क्रिमिनल लॉयर्स. प्रोबेबली दे डू द वर्स्ट ऑफ द क्राइम्स इन द सोसाइटी. तो राम जेठमलानी, इनके पास कौन है? भगवान राम. इस केस से समझना कि ये है क्या. ही वॉज द ड्राइवर इन द ब्लैक बक हंटिंग केस in which Salman Khan shot dead one of the endangered species, black buck, काला हिरन हत्याकांड या जो भी कह लो, ठीक है? He was seated next to Salman Khan as the driver, ठीक है? तो ड्राइवर को साइड में कर दिया कि मैं चलाता हूँ, पीछे जो एक्ट्रेसेस थी वो सब, ठीक है? तो इन्होंने हिरन को जो शूट किया, he was the eyewitness. He appeared in the Rajasthan High Court as the eyewitness. उसके बाद he went underground. क्योंकि बीइंग ह्यूमन ने या इन्होंने ये कहा कि व्हेन ही वेंट अंडरग्राउंड, तो सलमान खान के लॉयर ने राजस्थान में ये कहा कि हाई कोर्ट में ये कहा कि द विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल. जब कोई विटनेस, जब कोई चश्मदीद गवाह चश्मे से परे हो जाता है, गायब हो जाता है और कोर्ट में सुनवाई के दिन नहीं आता, व्हेन the prime eyewitness does not turn up during the hearing in the court, that eyewitness is the offender of the law. He would be declared as भगौड़ा और उनको ये कहा जाएगा कि आपने कानून को गुमराह करने की कोशिश करी. This is a travesty of justice. अंधा कानून. कि वो आदमी ये बोलता है 1.5 साल बाद आके उसने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया कि मैंने सलमान खान को देखा था और मैं कोर्ट में अपेयर होना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट ने मुझे मुजरिम करार दे दिया है. तो मीडिया में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या लीगल जर्नलिज्म जो चलता है आजकल, उनसे ये पूछा गया कि आप अंडरग्राउंड क्यों हुए? तो ही सेड दैट आई वाज गिवन अ थ्रेट टू माय लाइफ. मेरे को थ्रेटन किया गया सलमान खान के बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स के द्वारा, अगर तुम कोर्ट में आए तो फिर उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे. दिस स्टेटमेंट ऑफ द ड्राइवर वाज टेकन एज the statement on the basis of which Rajasthan High Court relieved him of the case against him for not appearing in the court. क्योंकि अगर कोई लाचार आदमी ये कहता है कि मेरी जान को खतरा था या मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इसलिए टाइमली केस फाइल नहीं किया या मैं कोर्ट में नहीं आ पाया, तो उस स्टेटमेंट को आधार माना जाता है ताकि हमारी कंट्री में ये स्केलर जस्टिस ना हो बल्कि ऐसा जस्टिस हो. कानून जो है गरीब या लाचार आदमी की फेवर में झुकता है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव इन इंडिया इज नॉट equality before law. Everybody would not be treated as equal in front of the law. Everybody would rather be treated as equal in equal circumstances. If the अगर दोनों के केस में राम जेठमलानी आ सकते हैं, दोनों के पास इनफ मनी है, तो फिर इसको कोई कानून से रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी. समझ में आया? Yes, positive discrimination जो आप कह रहे हो सृष्टि, गौतम, it is a good thing. Positive discrimination is upliftment, and then the other side, non-discrimination is the burying or what to say, or not promoting or disincentivizing the discriminative behavior on the part of individual citizens and the state itself. ठीक है, हम डिसइंसेंटिवाइज करेंगे, पीनलाइज करेंगे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को. सोशल जस्टिस की जो बात है. और कोई डाउट?
ओके, सो दिस वाज ऑल। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई थी वो इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया था, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जजेस ने विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला दिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है, बट द वे द जजेस हैव इंटरप्रेटेड दिस आर्टिकल 14 which talks about right to equality, it has been interpreted in the constitution in this manner कि equal protection of laws in equal circumstances. Let me give you some more examples of it. छोटी छोटी से कॉमन लाइफ एग्जाम्पल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एंड इट विल मेक यू अ बेटर सिविल सर्वेंट एज वेल एंड इट विल हेल्प यू इन राइटिंग better answers in ethics as well. When you buy small Colgate 10 rupees वाली जो टूरिस्ट पैक आता है या फिर 10 rupees वाला टाटा टी का पाउडर या कुछ परचेज करोगे, प्रोपोर्शनेटली इन प्रोपोर्शन टू द प्राइस आपको उसकी ज़्यादा कमोडिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो 10 rupees वाला जो पैकेट है गवर्नमेंट ये एज्यूम करके चलती है कि वो गरीब आदमी खरीदेगा, उस पर टैक्स कम लगाया जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज in equal circumstances, equal application of law of GST in case of equal circumstances. अगर आप 1 kg वाला पैकेट खरीदोगे 10 ग्राम्स या 100 ग्राम्स या 1000 ग्राम्स में आप देखोगे प्राइस बढ़ते चले जाएगा। जो 100 ग्राम्स वाला है उस पर 5% नहीं 10% टैक्स लगाया जाता है, 12% GST लगाया जाता है, ठीक है। 100 ग्राम्स या 10 ग्राम से ऊपर कोलगेट अगर खरीदोगे तो सेम। जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेट होता है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो 5%, 0%, राइट। 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5%। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैज गॉट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस बिहाइंड इट। कुछ भी जो इंडिया में हो रहा है लीगल डोमेन में उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होता है और इस केस में ये लॉ है, ठीक है। The real justice is when the statutory provisions are, the legal provisions are tilted in favor of the disadvantaged. The doctrine of equal protection of law says that law has to tilt in favor of the relatively disadvantaged because relatively advantaged can take care of themselves. They can manipulate the system. For example, Sanjay Dutt. For example, बाबा जी कहाँ गए? ये रहे, right? सुशांत सिंह शांत हो गए, ये भी शांत हो गए, लेकिन इनकी शांति जो है कलयुगी है, उनकी गुम है, अभी कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब एक दो चीज़ें और समझेंगे यहाँ पे। क्या ये सही मायने में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस है? नहीं। सिंगापुर में कभी कोई आप लोगों में से कुछ लोग गए होंगे या वैसे पढ़ना कभी। सिंगापुर में क्या है कि अगर एक केस हुआ 2008-9 में, संजय दत्त वॉज सेंट टू द प्रिजन, ओके। 1.5 साल की सज़ा और वो सब उन्होंने उस टाइम पे पूरी करी, संजय दत्त। तो कुछ मूवी मेकर्स ने ये कहा कि इफ़ दिस पर्सन वुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स, इफ दिस पर्सन वुड बी सेंट इन द जेल, तो क्या होगा? मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा, कैमरामैन जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। समझ में आया? और क्या है कि जो पर्दा वर्दा लगाता है ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। और इसीलिए ये संजय दत्त को जो है बेल दी जाए ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती रहे। संजय दत्त पे इतना पैसा लगाए, 50 करोड़ रुपए का पैसा लगाए, तो इनको बेल दी जाए। अगर ये जेल में रहेंगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का, प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब उसको किसी मीडिया पर्सन ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि संजय दत्त की अपनी ही बीवी की चाची की चाची की चाची की चाची ने पैसे लगाए हुए थे। समझ में आया? और वो मूवीज़ बननी नहीं थी, वो सिर्फ रजिस्टर करवाई गई थी कि इसका नाम ये होगा, मुन्ना भाई MBBS इन जेल और होंगे फेल, फालतू के नाम दे रखे थे ताकि इस बिना पे उनको पेरोल पे जेल से निकलवाया जा सके। जुडिशरी ने ये बोला कि हमें वो सब नहीं पता कि मूवीज़ फेक हैं या नहीं, हम इनको बाहर नहीं आने दे सकते। जुडिशरी वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ रिलीजिंग हिम। चलता है इंडिया में, सिस्टम है, ठीक है। लॉज आर ओनली फॉर द रिच, I mean only for the poor. Laws are implemented and tested on the poor so that they are not applied on the rich. तो अब ऐसे केस में क्या हुआ,
सिंगापुर में क्या सिस्टम है, अगर कोई ऐसा हीनस ऑफेंस करता है, अगर वो रिच है, तो भाई काम का आदमी है वो, संजय दत्त को जेल में डालोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बढ़िया ये है कि जो भी उस इनकम पूरे साल की उसकी इनकम होती है, ऐसे लोगों को, संजय दत्त जैसे लोगों को जेल में डालना ही नहीं चाहिए। जो इनकी इनकम होती है उसका 10 गुना या 102% पेनाल्टी इनके लिए पैसे ही होते हैं ना। तो इनके लिए जो ये कमाई करेंगे वो सारी की सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में चली जाए। तो जो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ पे सबसे बड़ा स्लम है या सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग, रेड लाइट एरिया देखा जाता है, गायब हो जाएगा। इनको जेल में रखोगे तो भी ये लोग एसी सुविधाएं, एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ पा ही लेंगे। अब शशि कला हैं, ऐसी कला दिखाई कि जयललिता ऊपर और नीचे सोचा कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं ले लूँगी। अब वहाँ पे कर्नाटका में उनको जेल में भेजा गया, वहाँ पे भी यही चल रहा है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस शुड बी यूज्ड पॉजिटिवली इन इंडिया। अगर किसी आदमी का चलान होता है तो गरीब आदमी का चलान भी 40,000, ठीक है, अगर वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन के चलते गाड़ी चला रहा है। ये बाबा जी क्या करते हैं, लोगों को कुचल देते हैं, ठीक है। तो ये एन्जॉयमेंट के लिए चला रहे हैं। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन के चलते अगर उसने ट्रैफिक सिग्नल जंप करा, उसको, मैं अपने एम्प्लॉय की यहाँ पे बात बता रहा हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दीज वेज, ठीक है, कि अगर कोई टाइम पे नहीं आ रहा या कुछ ऐसा, तुम्हें पता ही है वैसे कुछ कुछ, तो आई टोल्ड हिम कि अगर अब लेट हुए तो ख़त्म काम, क्योंकि काम सफ़र करता है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, पब्लिक जॉब है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि जब मन करे आ जाओ या कुछ ऐसा, और ना ही कोई बहुत बड़ा डोमेन है, राइट। तो ही सेड कि मैंने रेड सिग्नल क्रॉस किया और उस टाइम पे चलान कम होता था, 500-1000 रुपये चलान हो गया। अगली बार फिर उसका चलान हो गया। अब ये लोग भी बहुत क्लेवर होते हैं, इनको सिर्फ लेट होना होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल पे इनका चलान नहीं होता है, तो मतलब चलान हो गया। हिज नेम वॉज हिमांशु, राइट। तो अब उस केस में तो उसकी मजबूरी है, उसको अपने बीवी बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है और उसको रेड सिग्नल जंप करना पड़ता है। उस पर भी आप 5000 की पेनल्टी लगा दो कि उसने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया है, और फिर आप ये बोलो कि जो अमीर आदमी है उस पर 40,000 लगा दी। इसके केस में तो लगनी ही नहीं चाहिए। इसके केस में सिंगापुर या स्वीडन या ऐसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्या है कि उनके आधार कार्ड, मान लो कि वहाँ पे भी एक आधार कार्ड है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नंबर और ये सब के नाम से बोलते हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर में ये सारी डिटेल मेंशन है, उनकी इनकम कितनी है। उसको एटीएम जो पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है स्वाइप वाली, उसमें डालते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी इनकम, लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से पीनल ऑफेंसेस के चार्जेस कट जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे अभी किया जा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, दिस इज द हाफ बेक्ड कॉन्सेप्ट। इसको सही कंक्लूजन तक ले जाने के लिए जिसकी जितनी इनकम उसको उतना टैक्स लगना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क या कार्ड नहीं है या सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, इसलिए ये अमीर लोग बच जाते हैं। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ड्राइवर ऑडी खरीदता है या फेरारी खरीदता है या बीमर खरीदता है टैक्सी पे डालने के लिए, उसकी इनकम के बेसिस पे उसका जो 28% जीएसटी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो जीएसटी कम हो जाना चाहिए या टैक्स कम लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई सचिन तेंदुलकर फेरारी खरीद रहा है तो 28% नहीं होना चाहिए, फिर 48% होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो लग्जरी है। समझ में आया? तब ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तब ये चीज़ें अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगी। समझ में आया ये कि अगर इनके ऊपर पेनाल्टी लगाओगे, इनके ऊपर पेनाल्टी ये होनी चाहिए, जैसे ये सिविल ऑफेंस है, ट्रैफिक चलान और टिकटिंग, पुलिस टिकट समवन, तो सभी के लिए एक यूनिवर्सल लेवल ऑफ चलान ये गलत है। गरीब आदमी की मजबूरी हो सकती है कि अगर वो सुबह ऑफिस जा रहा है, उसको ट्रैफिक सिग्नल कभी कभी क्रॉस करना पड़ता है आगे पीछे देख के, लेकिन अगर कोई ऐसे धुत है नशे में, उसके लिए तो फिर ज़्यादा टैक्स इसी से रिकवर करा जाना चाहिए ताकि इनको डर लगे। अब इनके लिए 40,000 क्योंकि पीनट्स हैं, ठीक है, 40,000 मूंगफली दाने खरीदने के बराबर है इनके लिए, तो इनको 40,000 से क्या डराओगे? ये तो आज भी ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करेंगे, कार्ड दे के आ जाएंगे पुलिस वाले को, ये ले रख ले, घर दे देना, ये पिन नंबर है। सो दे मेक अ मॉकरी ऑफ लॉ दिस वे। समझ में आया? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यस,
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अप्लाइड इंडिविजुअली। आज जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो अप्लाई होता है, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, गुड्स की बात कर रहा हूँ या ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आज अप्लाई होता है बाय कैटेगराइजिंग द गुड्स अंडर जीएसटी, गुड्स अंडर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर 5%, 12%, 18%, 28%। वो आधी स्टोरी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट, वी शुड बी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया में इसका मतलब ये नहीं है, ये गलती हो गई है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एम्पलीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, what I was telling you previously, read into, अब आपको समझ में आएगा कि हमने बेसिक लेक्चर्स में टाइम क्यों लगाया। सुप्रीम कोर्ट read into आर्टिकल 14 equal protection of laws in equal circumstances। सॉरी गाइस, एक मिनट, ये लास्ट में टच होता है तो ये आगे चला जाता है। क्लियर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है या किसी भी आर्टिकल पे सुप्रीम कोर्ट ड्वेल करता है, व्हेनेवर द सुप्रीम कोर्ट डिग्स डीपर इनटू एनी आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, टू clarify the existing provisions according to the needs of, demands of the time, contemporariness, organicity या organic element को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई लॉ है, आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कैन रीड दैट लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द contemporary times। अभी मैं आइडियलिस्टिक क्वेश्चंस नहीं आंसर करूंगा गौतम, उसीलिए तो आपको यहाँ पे लाया गया है आईएएस बनाने के लिए, राइट। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये एक और आर्टिकल है जो इक्वालिटी क्रिएट करने की बात करता है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल हु हैव बीन प्लेस्ड इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। डन। The use of wells, tanks, bathing ghats, ये हम आगे देखेंगे सारा कुछ। अभी के लिए just to correlate with this principle of equality before law जो हमारे इसमें DPSP ये preamble में दे रखा है। क्लियर? preamble, evolutionary trajectory, ये आप खुद पढ़ोगे, this is homework 1, ठीक है। मैं इसको कल फिर से समझाऊंगा, लेकिन आज आप इसको खुद पढ़ोगे। आगे चलते हैं। LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द सेम पोजीशन दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। पढ़ा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, बेरूबारी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल थ्रोज लाइट ऑन सेवरल वेग प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी कुछ ऐसे जिगजैग है, ठीक है। एक मूडी गर्लफ्रेंड की तरह, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, यही चलता रहता है यहाँ पे। चलो अभी तो टाइम हो गया, यहाँ पे देखोगे 1950 और 1960। डेकेड इज नॉट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डेकेड इज नॉट सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 10 लॉन्ग ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट बदलती राजनीतिक हवाओं के हिसाब से अपनी जजमेंट्स को बदलते रहता है। Supreme Court keeps on wavering its own stance on the same identical issue on the basis of changing winds of politics। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो झुक के चलता है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी दब जाती है, ठीक है। जुडिशरी succumbs under the pressure of majoritarian governments। पहले नेहरू थे, शॉविनिस्टिक लीडर, करिज्मेटिक लीडर, ठीक है, दब गया। शॉविनिस्टिक गलत होगा, करिज्मेटिक लीडर, जिनका मोदी जैसा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हो रहा है। फिर मैडम दुर्गा, मतलब इंदिरा गांधी, जिनको दुर्गा बुलाया जाता था, तो मेजॉरिटी थी, सुपर मेजॉरिटी, फिर दब गया सुप्रीम कोर्ट। फिर इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो सिंपैथी वोट के चलते राजीव गांधी आए, 300 सीटों से ज़्यादा जीती लोकसभा में, फिर सुप्रीम कोर्ट दब गया। तो जैसे जैसे हवा बदलती है राजनीति की, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो जजेस को डर लगता है, राइट। हर किसी को ठंड लगती है या हर किसी को कंपन होती है डर की, तो इसीलिए जजेस, हर किसी को प्रमोशन चाहिए,
तो फाइनली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिबेट क्यों शुरू हुआ कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? डिबेट इसलिए शुरू हुआ कि अगर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा तो A.K. गोपालन जैसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, जिनको जेल में डाल दिया, वो लोग ये कहेंगे कि आई एम दी सॉवरेन, आई हैव गॉट द राइट टू इक्वालिटी, मेरे को जेल में क्यों डाला? सरकार के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो सरकार ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज just the pages to protect the constitution from the glue that was applied to the cover of the book। होता है ना, हार्ड बाइंडिंग के साथ में 2-4 पेजेस एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं तो कि जो ग्लू फैले, स्प्रेड हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को खराब ना करे। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा कि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट भी डरता रहा कि हाँ ठीक है, नेहरू हैं तो दबना पड़ेगा वरना कहर हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट वेंट ऑन टू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड थ्रू द प्रिज्म ऑफ द प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बाद में इसने 3 वर्ड्स इंसर्ट करे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक इंटरेस्टिंग फीचर देखना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 वर्ड्स नहीं थे, ठीक है। Original preamble to the Constitution of India did not include these 3 words. Socialist, secular and integrity was not mentioned. 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे ऐड किया। क्यों? मुस्लिम अपीजमेंट। संजय गांधी नसबंदी करा रहे थे और मैडम कांग्रेस में एडिशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडिशंस करा रही थी। सोशलिज्म इसलिए गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नाम पे जंतर मंतर के पास जो गरीबों की झोपड़ियाँ थी हटा दी गई, क्योंकि गरीबी हटाना मुश्किल है, गरीबी हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वर्ड को इसलिए डाला गया कि उस टाइम जो जयप्रकाश नारायण और इमरजेंसी के ईयर्स में इंदिरा गांधी सरकार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो इंटेग्रिटी टर्म डाल के ये कहा गया एनीबडी हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, उसको प्रियम्बल के जरिए भी पिनलाइज किया जा सकता है। पर्पस था इसको इंसर्ट करना ताकि ये बेनेवलेंट लुकिंग वर्ड के जरिए, बहुत ही प्यारा प्यार भरा वर्ड है, इसके जरिए अत्याचार किया जा सके। वो लोग जो इंदिरा गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, ये सब, ठीक है, जब जनता पार्टी हुआ करती थी। तो इसलिए अब सेक्युलर भी डाल दिया गया ताकि मुस्लिम्स को अपीज किया जा सके, मुस्लिम वोट लिए जा सके। सोशलिस्ट इसलिए डाला गया क्योंकि गरीब के खून में कुछ तो मिठास है, जिसको देखो चूसता जरूर है, चाहे मैडम हो या मोदी, ठीक है। तो ये सारा कुछ जुमलेबाजी करी जाती है। बाय इंसर्टिंग दीज डेकोरेटिव वर्ड्स no real purpose was served because this is mentioned and this is mentioned, not in the preamble, it was not there, but this is mentioned in other parts of the constitution। तो होता है ना, कभी कभी कोई राइटर कोई बुक लिखता है, प्रीफेस में थोड़ी सारा कुछ लिख देगा, प्रीफेस फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स forgot to write about these words in the preamble, but just to garner some votes and just to send the signals across to the Muslims and to the poor that we are, that Indira is there for you, Durga is there for you, ये सब काम किया गया। फिर उनके चाचा आए मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये कहा कि हम ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये 2 वर्ड्स जो हैं हम डिलीट कर देंगे। 2014 में इलेक्शन जो जीतना था उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई। He said that when we would come into power in 2014 we would delete these words। क्यों? हिंदू वोट मिलेगा अगर सेक्युलर मेंशन्ड है, यानी कि हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को झटका लगेगा। सेक्युलर को डिलीट कर दो, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म रुक नहीं पाएगा। सोशलिस्ट को डिलीट कर दो, कैपिटलिस्ट क्लास चंदा देने लग जाएगी। इलेक्शन से ठीक पहले ये कहा गया कि हम ऐसा करेंगे। He was sending the signals to his capitalistic brothers like नादानी and भाईजानी जो भी हैं कि मेरे ही पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दो और मैं जीत के आऊँगा तो लौटा दूंगा एहसान आपके। तो ये दोनों चीज़ें करी गई। क्या ये इनको डिलीट करना पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज these have been declared to be the basic, these have been declared to be the part of
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पेयर नहीं किया जाएगा, इनकम के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जाएगी। नाउ in LIC case 1995, Supreme Court again reiterated the same position that preamble is an integral part of the Constitution, but preamble is non-justiciable, meaning thereby that I cannot go to the Supreme Court and say that देखो इसमें word sovereignty लिखा है, इसका मतलब individual sovereignty, तो सरकार मेरे को मेरे बायोमेट्रिक डिटेल्स शेयर करने को क्यों कह रही है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है आई कैन नॉट सीक जस्टिस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट this particular principle or word whichever is mentioned in the preamble, this is the basis for me litigating against any policy of the government which goes against the stuff mentioned in the preamble। समझ में आया? जस्टिसिएबल का मतलब आपको कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार नहीं देती preamble में लिखी गई अच्छी अच्छी बातें। Clear? Today the position is that in the right to privacy judgment, Justice Chandrachud of Supreme Court cited preamble as one of the sources apart from Article 21. Right to life, जो मैं पहले बता चुका हूँ, right to life without privacy is anything but life. Life का कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे। Now, discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? 2000 कह लो, 2016 में ये क्वेश्चन आया, as recent as 2016. So be careful, don't undermine, don't neglect कि ये तो ABCD है, कर लेंगे अटेम्प्ट, ठीक है। How far have we been able to achieve these? अच्छा, अब India has got a positive concept of secularism और pseudo secularism। तो आज जो DNA ग्रुप पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी पूछा था, pseudo secularism क्या होता है? फेक, नियर सेक्युलरिज्म और समथिंग वेरी फार अवे फ्रॉम द सेक्युलरिज्म, है ना, फेक सेक्युलरिज्म कुछ ऐसा। तो इंडिया हैज गॉट द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म। कॉमेंट ऑन दिस। सेक्युलरिज्म की स्ट्रिक्ट थियोरी ये कहती है कि स्टेट विल कीप ऑफ फ्रॉम द रिलीजियस इशूज, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म ये कहता है कि फ्रांस जैसे में ना तो आप क्रॉस पहन सकते हो, ना आप बुर्का पहन सकते हो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में फ्रांस में, और ना ही आप कुछ और पहन सकते हो। हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारी सिख कम्युनिटी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अगर उन्होंने अमृत छका हुआ है तो वो चाकू लेके जा सकते हैं, राइट। हेड गियर, क्रॉस, और जो पंडित हैं या हिंदूज़ हैं वो टीका लगा के जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। तो एवरी क्लास इन इंडिया, एवरी स्कूल क्लास इन इंडिया इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ दिस थिंग, religious diversity of India, right? So how far have we been able to achieve the ideals? अब ये क्वेश्चन लिखोगे, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। कहीं जो सुन रहे हो भजन कीर्तन लिखोगे इस पे कि हाँ मैं भी इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ। अब तुम्हारा धर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म, राइट। तो UPSC is the only dharma. You will evolve with this class in your ideological moorings and your preconceived notions. Do you think that the value of preamble has been reduced to a dead letter? टाइम क्या हुआ है बताओ फटाफट, क्योंकि वो थोड़ा इमोटिव वे में पढ़ाने वाला टॉपिक है। यस, हो जाएगा कवर। इकोनॉमिक जस्टिस, करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। 2013-14 जो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये क्वेश्चंस हैं आज के लिए। 2 क्वेश्चन इधर हैं, 4-6 क्वेश्चंस और डाले हैं क्वेश्चंस में। अटेम्प्ट करोगे उनको प्लीज़, उन क्वेश्चंस को भी। आज का जो MCQ क्विज है, डेली क्विज नहीं होगा। हमने डेली का प्रोविज़न इसलिए रखा है कि जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तो विल आस्क अ क्वेश्चन। Please write the answer, the question number while giving the answer. Economic justice as one of the objectives of the Constitution
has been provided in the preamble and the fundamental rights, preamble and the directive principles of state policy, the fundamental. अभी आपने पढ़ा नहीं है तो ठीक है, इसको रहने देते हैं. Where is Vishnu? I think he must be busy with some problem or something. Normally I get to hear on Telegram about these people, so that's why. ओके सो ठीक है, कर लोगे तो ठीक है, अभी के लिए नहीं. केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन को सैक्रोसैंक्ट कर दिया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आप कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू कैन नॉट टच देम. तो प्रोविजंस ऑफ द प्रियम्बल विच आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म. तो यानी कि मिस्टर अमित शाह गलत थे, उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी. पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, क्योंकि उनको रेगुलेट करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि देयर इज़ नथिंग टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दे आर दे द लूज डॉग्स. गाना आता है ना, हु लेट द डॉग्स आउट, वो वाला काम है कि मतलब कुछ भी बोलोगे आप. ऐसा थोड़ी है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप कुछ भी बोल सकते हो तो आप कुछ भी बोलोगे, राइट. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये सारी चीज़ें, all these points, all these aspects which are a part of preamble, these have been declared to be a part of basic structure of constitution. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको अमेंड किया नहीं जा सकता, इनको डिलीट नहीं किया जा सकता. These are the very things which give us the idea of India. When we think of India, when we hear the word India, the name India, we are reminded of these things, right? सोच के देखो, ये सारी चीज़ें, you live these things daily basis पे. सेक्युलरिज्म और ये सब, तो इनको डिलीट करना तो असंभव है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था. In January 2015, a controversy erupted related to the amendment of the preamble to delete the words socialist and secular, which were not there in the original constitution. Should these words be deleted? आंसर कैसे करोगे? ठीक है, ये मैंने स्केलेटली नहीं, मैंने पूरा आंसर्स कुछ ऐसे लिख दिया आंसर को. Preamble embodies the basic philosophy and fundamental values on which the constitution is based. The inclusion of the words socialist and secular is best seen as an explication or explanation of the ideals modern India has drawn directly from the freedom struggle. Point number 1, फ्रीडम स्ट्रगल से डिराइव हो रहा है. फिर किसी थिंकर को आप लिख सकते हो, ग्रैनविली ऑस्टिन सेड दैट रूट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स could be traced to the 1931 कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन. कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन में ये उन्होंने कहा था कि जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ें लिखी जाएंगी. एंड टू द टू स्ट्रीम्स ऑफ सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट sentiments in India that had been flowing ever faster since late 1920s. ठीक है, दो पॉलिटिकल स्ट्रीम्स, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो 1920 गांधी जी के आने के बाद काफ़ी अच्छे से इंडिया में तूल पकड़ रही थी. ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को गाइड कर रही थी. सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि वी वर विक्टिम्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिज्म, तो इसीलिए सोशलिज्म इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट. Even the Morarji Desai-led Janata Party government, in which the Janasangh was the constituent, जो 1978 में जो पार्टी इंदिरा गांधी के जाने के बाद पावर में आई, उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट की काफ़ी गलत पॉलिसीज़ को, काफ़ी गलत प्रोविजंस को डिलीट कर दिया, बट उन्होंने इसको डिलीट नहीं किया. ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑल्सो एम्फेसाइज दैट इन SR बोमई केस. अब हमने क्या किया, देखो शुरू हुए हम हिस्ट्री से, 2 पॉइंट्स हिस्ट्री के दे दिए. पॉलिटिकल हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में क्या इसका कोई मेंशन है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेंट प्लेस है इन दोनों वर्ड्स का, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का. तो हिस्टोरिकल रीजंस के चलते हम अपने आंसर का ये बेस बना रहे हैं कि इनको डिलीट करना इनअप्रोप्रिएट होगा. फिर हमने साइड किया पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया, सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया. ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को लेके आई, मोरारजी देसाई ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के और बाकी गलत प्रैक्टिसेस प्रोविजंस को डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने इनको नहीं छुआ.
तीसरी बात, फिर हम जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस जो जुडिशरी ने जो कहा उसका सहारा ले रहे हैं अपने आंसर को बैक करने के लिए। हवा में बातें नहीं चल रही, आप देखोगे हर चीज में एक फैक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, हर यहाँ पे एक फैक्ट इन्वॉल्व है। तो फैक्ट्स if they are memorized as a byproduct of analysis, then it is fine, otherwise it will be difficult for you to memorize that, and vice versa is also true. Analysis, if without backed by the facts, will be an exercise in futility, will be like loose things hanging in the air, ठीक है, हवा में बातें थोड़ी करोगे वहां पे। तो इसीलिए ये सारी चीजें, जैसे ये फैक्ट है यहाँ पे, इसके बेसिस पे करोगे। ग्रैनविली ऑस्टिन पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो अब मटेरियल मिल जाएगा, उसमें ये चीजें रहेंगी। Clear? With or without the amended preamble, the Indian constitution will remain secular. But the signal, the dropping off, अब आप क्या बात कर रहे हो, आप अपना administrative point of view रख रहे हो कि जो signal minorities को जाएगा इन दोनों words को drop करने की वजह से would be disconcerting to the minorities. It will discomfort them, ठीक है, it will make them, it will enervate them, ठीक है, कि भैया ये क्या हो रहा है, राइट। तो इसीलिए 2014 की आईबी की रिपोर्ट ये कहती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की 2014, द फर्स्ट ईयर व्हेन बीजेपी केम टू पावर, कि आफ्टर द अराइवल ऑन सीन ऑफ द बीजेपी द माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया आर फेसिंग द रॉयटस सिचुएशन। समझ में आया, दंगों की स्थिति, कम्युनल रॉयटस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आईबी की रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया है। अगर ये क्वेश्चन 2016 में आया तो आप उसको भी लिख सकते हो कि ऐसी सिचुएशंस होंगी तो अननेसेसरी ब्लडशेड हो सकता है। दैट्स इट, ठीक है, आपने सारा कुछ बोल दिया। अब अगर हमने क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शुड दीज वर्ड्स बी डिलीटेड, अब यहाँ पे आता कुड दीज वर्ड्स बी डिलीटेड, क्या इन वर्ड्स को थियोरेटिकली कोई पॉसिबिलिटी है? यस, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, ठीक है। वो अलग बात है कि इनके डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा आपने डिलीट कर दिया, मैं रिस्टोर कर देता हूं, आई विल रिस्टोर देम, आई विल री इंसर्ट देम टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, सुप्रीम कोर्ट वुड से दैट बाय रिपीलिंग और बाय डिक्लेयरिंग इनवैलिड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ थ्रू विच यू हैव डिलीटेड देम, रिपील्ड देम, ये कह सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, इंडिया वॉज, India is and India will remain a socialist and secular republic, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा आपने डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को जो सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है आप वर्ड डिलीट कर दिए, क्योंकि इट फाइंड्स मेंशन, सेक्युलरिज्म वर्ड फाइंड्स अ मेंशन at least 7 more times in the Constitution of India. Article 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, तो सेक्युलरिज्म की जो फिलॉसफी है इट फ्लोज फ्रॉम दीज एन्यूमरेटेड आर्टिकल्स। समझ में आया? तो इसको डिलीट करना, फिर फंडामेंटल राइट्स में से तो डिलीट किया नहीं, सिर्फ प्रियम्बल में से डिलीट किया है, तो करते रहो डिलीट, कहाँ से डिलीट कर लोगे? तो ये सारी दिक्कत है। क्लियर? अब ये हो गया, इज आर पॉलिटी लिविंग अप टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल। द कैप्टिवेटिंग, ये भी एक मॉडल आंसर की तरह देख सकते हो। कैप्टिवेटिंग वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल आर नथिंग मोर देन पॉम्पस रेटरिक्स व्हेन वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या हम वाकई सॉवरेन हैं? तो फिर क्यों ये लेमोआ और कलमुआ, सॉरी कॉम कासा जो है हमें साइन करने पड़ रहे हैं, राइट? तो वाई आर वी बींग ब्लैक फेस्ड, या हमारे मुंह पे कालत क्यों पोती जा रही है कि ये वेपन खरीदो, वो वेपन खरीदो, ये खरीदो? वाई देर इज अ रश, मैड रश टू बिकम द हाईली वेपनाइज्ड स्टेट। इजराइल से पार्टनरशिप है तो इंटेलिजेंस, इतना डर क्यों? सोवरेनिटी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, लैक ऑफ फेयर। वी आर सो वेरी फेयरफुल, वी आर नॉट अ सेक्युलर कंट्री। इंडिविजुअल सोवरेनिटी की बात करें तो if a master hires a servant, the servant is to be verified by Delhi police for his identity card, for his background check. But here is the case that individual sovereign has to give his fingerprints, his biometric details for getting the services out of the tax paid by the sovereign individual himself. मेरे पैसे, मेरा मोबाइल फोन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे पैसे तुम रद्द कैसे कर दोगे? Who are you to demonetize my money? And who are you to ask for my most confidential details in order to give me the benefits of
benefits out of my own tax paid money. समझ में आया? ठीक है. सोशलिस्टिक, क्या हम आज सोशलिस्टिक हैं? एक बड़ी चीज आज समझना, डेमोक्रेसी में रिफॉर्म तब आते हैं जब क्राइसिस होता है. 1990s we did not have enough money for meeting up to 7 days of imports of crude oil and other necessary items. हमारे पास पैसे नहीं थे. उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सोशलिस्टिक रिपब्लिक, दैट लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस वुड बी सोशलिस्टिक. सोशलिस्टिक सिस्टम का मतलब होता है मीन्स ऑफ एडवांस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी एज अ होल थ्रू द गवर्नमेंट. रशिया, यूएसएसआर, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन. हमारे यहाँ पे तो क्या चल रहा है? 80% of people are economically weak. We can achieve the real socialism only by making the rich genuinely involved in the uplift of the poor. हमारे यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है. ठीक है कि कहने को ये है कि सोशलिज्म लिखा हुआ है लेकिन कैपिटलिज्म है. रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, राइट? 75% अकॉर्डिंग टू, प्लीज राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू 10th 5-year plan, 75% of GDP of India is coming from the private enterprises. According to 10th 5-year plan, 75% of GDP of India कम, ये 10th 5-year plan की बात है. 12th 5-year plan 2017 में ख़त्म हो गया, तो तब तक 80% 90% GDP जो है प्राइवेट फर्म्स, टाटा, अंबानी, अदानी, नादानी, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार द्वारा ओन्ड हैं? नहीं. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इटसेल्फ, राइट, अगेंस्ट दी प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. उसके बाद भेल मांग रहा है कुछ बेल कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कह रहा है कि भैया मेरे को प्राइवेटाइज मत करो. ONGC ऑयल, पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि 5 बैंक्स के अलावा बाकी सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. तो इसमें दिक्कत क्या है आज थोड़ा समझ लो. इसमें दिक्कत ये है, 1990s का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. माई नेबर वॉज इन टू रोड कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, रोड कॉन्ट्रैक्टिंग होती है ना, ही यूज टू गेट द ठेका और कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग और लेइंग डाउन और लेइंग 50 किलोमीटर्स ऑफ रोड. 1-1.5 करोड़ का ठेका मिलता था उनको. 15-20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बच जाते थे. किसी में 15-20 बच गए, किसी में अपनी तरफ से डल गए. अब क्या है, means of advance are such that only big corporations would be able to get contracts. Eligibility condition जैसी करी जा रही हैं. केबल टीवी, ठीक है, एनालॉग टीवी या सेट टॉप बॉक्सेस जो आ गए, ऐसे क्राफ्टी सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं कि रिलायंस को ये पता था कि नवी मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आएगा. तो रिलायंस ने अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या किया, जैसे हम लोग यूपीएससी के लिए एलिजिबल होने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं. इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक छोटी सी स्ट्रेच है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तक जाती है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाती है. ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. वैसे ही इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया, DMRC को ये बोला कि जो मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, हम उसको चलाएंगे. 3 साल तक उसको चलाया. 140 रुपये से ये सिलसिला शुरू हुआ. 140 रुपीज़ फॉर जस्ट 4 स्टेशंस. जबकि पूरी दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उससे ये बेटर है, अच्छी बात है, बुलेट प्रूफ है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, सब कुछ ठीक. लेकिन सिक्योरिटी CISF दे रही थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. उसके पैसे अनिल अंबानी ग्रुप नहीं दे रहा था, मुकेश अंबानी ग्रुप नहीं दे रहा था. रिलायंस इंफ्रा नाम की ये कंपनी 140 रुपये में इसे चलाती है, फिर इसे 180 रुपये कर दिया गया. DMRC से अप्रूवल मांगा गया कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर हेल्पलेस
एंड वी हैव टू इंक्रीज द टैरिफ। तो डीएमआरसी ने बोला ठीक है, क्योंकि शीला की जवानी उस टाइम दिल्ली में चल रही थी, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट एंड अंबानी चल रहा था, जो भी पावर में होता है तो ये लोग जो है उनसे सांठ गांठ बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसने 180 रुपये से 250 रुपये मांगा, वो भी अप्रूव कर दिया गया। फिर बात आई 300 रुपये की, 6 महीने के अंदर बोला कि 300, क्यों? तब 3 साल पूरे हो चुके थे। नवी मुंबई मेट्रो एक्सप्रेस लाइन बनाने के लिए किसी कंपनी को यदि अवार्ड दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था। सीए में जो आर्टिकलशिप होती है ना, ये भी कुछ उसी तरह था, ठीक है। सीए को आर्टिकलशिप के 6 से 8 से 10 हज़ार रुपये देने होते हैं, जो आर्टिकलशिप कर रहा होता है, जो इंटर्नशिप कर रहा होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे वहाँ पे 10-20 हज़ार देके आते ताकि हम लोग प्रॉपर्टी का काम कर सकें। क्या करेंगे वहाँ वेले बैठ के, कुछ काम सीख लूँगा मैं। वैसे ही अंबानी क्या कर रहे थे, सरकार के नाक में दम कर रहे थे। 140, 180 सरकार मान गई, अरे मान गई, चलो बहुत अच्छी बात है, कमाई हो रही है। जब अंबानी थक गए कि मज़ा नहीं आ रहा, छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसको सिर्फ ऑपरेट करना है, सर्टिफिकेट मिल गया कि दी कंपनी रिलायंस इंफ्रा हैज़ गॉट एन एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लाइन्स इन दिल्ली। उसके बेसिस पे हज़ारों करोड़ों का टेंडर लेने के लिए ये किया गया। समझ में आया? ये है कैपिटलिज्म का घिनौना रूप। आपने डब्बा लगाया टाटा स्काई, ये मैं एग्जाम्पल डीएनए में दे चुका हूँ। यू इंस्टॉल दी टाटा स्काई और एयरटेल टीवी एंड ऑल, तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ? या तो तुम्हारे टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स ना आती हों। गुलामियत की जब पड़ जाती है आदत, तो सोवरेंटी, और ये ध्यान से समझना ऐसे लिखने के लिए या न्यूज़पेपर समझने के लिए मेरे लिए ये समझाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर कोर्सेज बहुत हैं और क्लासेस भी बहुत हैं। इट इज़ योर सेट टॉप बॉक्स, इट इज़ योर टेलीविजन, इट इज़ योर फेस एंड एडवर्टीजमेंट कम्स 14 दिनों में गोरापन। तुम खासकर देखो, मैं सेक्स की बात नहीं करता, मेल फीमेल, फीमेल्स खासकर, अच्छा फेयर एंड लवली मैन भी आ गई है तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर ही लेते हैं। तुम अपने फेस पे हाथ लगाने लगते हो, फिर अमेज़न खुलता है, फिर ऑर्डर हो जाती है, ये नहीं तो लैक्मे, लैक्मे नहीं तो कुछ और, हो जाती है ऑर्डर। दे स्लैपिंग ऑन योर फेस, आंट यू द बिगेस्ट फूल हेयर। 1800 का डब्बा लगाया मैंने, पैसे दूं महीने के मैं, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, एडवर्टीजमेंट मैं क्यों देखूं? और क्लैरिटी, टू हेल विद क्लैरिटी। सन टीवी से मून टीवी तक चैनल चेंज करते करते आधा घंटा जो टीवी का देखने का होता है वो निकल जाता है। पैसे किसके बने? एनालॉग टीवी वाला जिसके पास 2-3 लाख रुपए महीने कमाने की एक अपॉर्चुनिटी थी, वो भी गया। वन ऑफ माई कजन्स, ही इज़ वेरी नोटोरियस, राइट, वो बार बार बिजनेस की बात एंड ऑल, तो माई अंकल वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग हिम दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय कनेक्शंस विद वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल। अब वो भी गया। जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उनके बस की भी बातें नहीं रही बिजनेस करना। 2 क्लासेस रह जाएंगी। कार्ल मार्क्स को याद करते हुए, उनकी गर्लफ्रेंड चली गई थी तो उनकी गर्लफ्रेंड को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे समझना, प्रोलेटेरिएट, मार्क्स ने ये कहा था कि 2 ही क्लासेस रह जाएंगी। एक क्लास जो इन लोगों के अंडर काम करेगी और दूसरी क्लास जो ये खुद, तीसरी सरकार जो इनकी सेवा में लगी रहेगी। समझ में आया? नहीं, समझना इन चीज़ों को। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, क्या कह रहे हो? मैं अभी डाउट्स नहीं देख रहा था, 1 मिनट। क्रोनी कैपिटलिज्म, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, राइट। जब सांठगांठ होती है एक नेता की और एक किसी उद्योगपति के साथ में, किसी ब्यूरोक्रेट के कनेक्शंस होते हैं या किसी बिजनेस ग्रुप के कनेक्शंस होते हैं, तो उसे क्रोनी कैपिटलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। हमें पता नहीं लगता, हमारी जेब से बेटर सर्विसेज का हवाला देते हुए पैसे निकाल लिए जाते हैं और हम रिमोट चेंज करते रह जाते हैं। आगे चलते हैं। वी से दैट आर सेक्युलरिज्म मीन्स दैट equal treatment of all the religions, but the truth is that gullible are falling prey to self-declared gods and messengers mushrooming across the country. सेक्युलरिज्म के नाम पे आज मैं जेवी बाबा बन सकता हूँ, समझ रहे हो? एक नया रिलीजन जेवियनिज्म स्टार्ट किया जा सकता है, मिलता जुलता है जैनिज्म से, लेकिन हमारा रिलीजन जो होगा बहुत हार्श होगा, कड़वी बातें करेगा। Then mentioning of cow in the constitution. If India is a secular country, if all life is sacred, why only mention of cow? है ना?
गलत है ना, मुर्गी भी तो जीव है, वो भी कुकड़ को बोलती है, सुबह 4 बजे उठती है, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, दोनों खाए पिए जाते हैं, बात तो एक ही है। सेक्रेड क्यों है? अच्छा सेक्रेड है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओनली द मेंशन ऑफ काउ इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इफ ऑल लाइफ इज सेक्रेड, भगवान जो है कण कण में बसता है, ये बोलते हैं बाबा लोग, तो फिर सिर्फ काउ क्यों? और इतने सारे राम हो गए, आसाराम जो भी हैं, ठीक है, आसाराम, फिर उसके बाद राम रहीम, फिर उसके बाद राम सिंह हरियाणा से, तो रेपिस्ट भी हैं इसमें, और किसी ने बच्चे को मार दिया, ये सब इनको रेगुलेट नहीं कर पाता। फ्लॉज इन दी सेक्युलरिज्म, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन स्टार्ट दी रिलीजन विच इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड टू द मैक्सिमम बाय दीज, ठीक है, क्योंकि ये वोट बैंक है, बाबाज फॉर वोट, क्लासेस फॉर नोट्स एंड मासेस फॉर, देखो बाबाज फॉर सपोर्ट है, ठीक है, मासेस जो हैं वो वोट्स के लिए रह गए कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में। प्रियम्बल का फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म, कार्ल मार्क्स जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा, नहीं तो कार्ल मार्क्स के भी नोट्स मिल जाएंगे थिंकर्स में। बाबाज आर फॉर, मासेस आर फॉर वोट्स, तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वोट दे दिया, बेवकूफ़, ठीक है। और फिर क्लासेस नोट देती हैं, क्योंकि उनको पता है जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो ये पॉलिसी लेके आएगी, पॉलिसी से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, जो पैसे दिए 10,000 करोड़ उसके 50,000 करोड़ रिटर्न में मिल जाएंगे, जियो बिकेगा, जिएगी जनता, ऐश करेंगे मोदी और अंबानी, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट, ऐसा रॉबर्ट वाड्रा के टाइम पे भी होता था, सभी के टाइम पे होता है, वो तो राहुल गांधी आ गए, नहीं तो सिलसिला चलता रहता। सपोर्ट कौन देता है? बाबा की आशीर्वाद। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छी बात यह है कि किसी से आशीर्वाद लेके उन्हीं को ही जेल के पीछे भेजना, कोई इनसे सीखे, अच्छी बात है ना। इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक गटर है, ये बोला जाता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रूव्स इट वेरी वेल। In order to clean the gutter, you have to get into the system with the support of those very people whom you want to send behind the bars. सही है ना ये तरीका? इनको ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स, इंडिया में जो हीरो वर्शिपिंग का कल्चर है उसको रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा जाए। इस पर भी एक डिस्कशन रहेगा, हम डिस्कशन करेंगे किसी और दिन DPSPs के अंडर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे को एक रियलिस्टिक व्यू देती हैं कि जो चीज़ें थ्योरी में लिखी हैं वो एक बात है, हो कुछ और रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, काउ इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इफ ऑल लाइफ इज प्रेशियस एंड सेक्रेड, व्हाई द काउ हैज बीन singly individually mentioned in the constitution. Democracy, finally our claim as the largest democracy of the world is more hype. And is it possible to run our so-called democratic elections without factoring in the caste and communal angles, money and muscle power, Vikas Dubey type power, right? Vikas Dubey, democracy को ले डूबे, right? And deputation of security personnel. बंदूक की नोक पे एक बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, SC/ST कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप ये नज़ारा यूपी में, बिहार में देख सकते हो, अगर मुझे वोट नहीं मिले मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। एंड देयर वाज अ केस अगेंस्ट हिम, क्योंकि ये बात किसी SC उन लोगों में बैठे किसी ने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली थी, राइट, उनके ही अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने, होता है ऐसा भी, तो उनका जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए, बट ऐसा होता है, ठीक है। मनी मसल पावर के बिना, सेकेंड ARC ये कहता है कि 25, सेकेंड ARC की बातें हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, 25 करोड़ रुपीज इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्शन contesting the election of MLA. 75 crore rupees is the average cost of contesting the elections for member of parliament. Some people they get into these services to collect this much amount of money. Some people they come from politics to business, from business to politics, so that they can make the policy for their own kith and kin, अपने relatives के लिए, ठीक है। Democracy is a two-way road, voting and contesting. Merely giving the right to people to vote does not mean that it is a two-way road. If it is going to be one-way road, then there is going to be two classes. There are going to be two classes. एक जो वोट करेगी और दूसरी जो वोट जीतेगी। उन्हीं के ही बेटे, पायलट का बेटा पायलट बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, राइट। ये जो चीज़ है, डॉक्टर में तो फिर भी प्रोफिशिएंसी चाहिए, चलो 40 लाख डोनेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है,
हीरो वर्शिपिंग। कल इसमें थोड़े और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक एडिटोरियल है, वो मैं शेयर करूँगा, कुछ लोगों को पहले से पता है। एक लिस्ट ऑफ एडिटोरियल्स है एट रेलिवेंट, during the discussion on these topics, relevant editorials will be shared alongside. Clear? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यस You can ask your doubts, guys. I'm keeping a tab here. क्या डाउट है आपका, बताओ। Is the expenditure on religious purposes by the government accounted for? Yes. Strict accounting is not possible, of course. Akshar, can we say that due to Google, Facebook like companies, India is now no longer a sovereign country? No, अभी के लिए डेटा सॉवरेंटी की बात नहीं करेंगे, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर करेंगे। Why preamble is called the horoscope of India? Preamble is called as the horoscope of India because अभी के लिए horoscope नहीं है, it is a flawed or you can say the misinterpreted horoscope. Horoscope क्या होता है? It tells you as to what is going to happen. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ज्योतिष जो है जिसने ये horoscope लिखी थी, वो ज्योतिष ने गलत लिख दी। कैसे? एक बच्चे को बोला गया कि ये इतना बड़ा बनेगा कि इसके आगे पीछे गाड़ियाँ घूमेंगी, ठीक है, ये IAS बन सकता है, ये नेता बन सकता है, लेकिन ही एंडेड अप बिकमिंग अ ट्रैफिक कॉप। कुछ ऐसा ही इंडिया के इस आर्ग्यूमेंट से आप कह सकते हो कि प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप विच हैज़ बीन रॉन्गली रिटन। ठीक है, गलत हो गई है वो लिखने में। ज्योतिष जो है वो गलत था, उसने कहा कुछ और, हुआ कुछ और। आफ्टर द पासिंग ऑफ एनी एक्ट when it came under judicial review. Yes, after the act is passed, it comes under judicial review only after that. It will work fine now. Yes. Insofar as the class is concerned, we are done for today. Insofar as the class is concerned, we are done for today.
All right, guys. So for today, can we wind up the session? I just wanted to formally come live and say, see off to all of you. कोई और डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो फटाफट. Thank you, Pratima. Thank you, everyone. You shouldn't be thankful because I love teaching this way. We've covered the facts. Everything is intact, right? You're able to listen to me. The class was good today. Thanks a ton. In today's practice test, question number 5 was repeated. Okay, we'll look into that. Why preamble is called as horoscope? Horoscope इसलिए कहा जाता है कि ये माना जाता है कि जो चीज़ें preamble में लिखी हुई हैं वैसा ही होगा. Constitution को जब रचा गया था, लिखा गया था, तो ये सोचा गया था that constitutional practice will create the conditions for the way the constitution will be implemented. It will lead to creation of the conditions or the implementation of the principles of preamble, but it has not happened, right? No need to include. देखो क्या Rishabh, are you planning to join the party called BJP? No need to include more assertive. These things are there. I'll be telling you as we proceed along this course. SC says Constitution envisions egalitarian government. Then how different form work will be carried out? There is a difference between practice and theory. Shubham, can we mention extreme answers right the way you explain it to us? Yes, जो preamble वाला topic है, अब से जैसे ये assertive statements हैं without naming any political party, we can do that. I have given you 2 sample answers today. Go through them again and again, read them 4 or 5 times at different points of time. Okay. So what role intention of the legislature plays beyond articles of the Constitution? What role the intention of the legislature plays beyond the articles of Constitution in the right of preamble? Intention of legislature plays, आप क्या कहना चाह रहे हो? Intention of the members of the legislative assembly or parliament play. Okay, what role does the intention plays? What role does the intention play beyond the articles? तो intention is everything here. If you are पहले एक बार directive principles of state policy पढ़ लेते हैं तो आपको खुद को ही आइडिया हो जाएगा. मिलाप उसमें क्या है, लैपटॉप और सोने की बालियाँ, ऐसा सा ही कुछ ऐसी सी क्लास रहेगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट plays a very big role. If the intention is to uplift the people out of poverty, then definitely things will happen that way. ठीक है, but how to have that set of 100 or 200 men and women in the preamble, in the sitting in the parliament. अब हेमा मालिनी जो हैं अगर कैंट प्योरीफायर बेचेंगी बाहर और बनेंगी सॉवरेन या फिर ये कहेंगे कि हम इकोनॉमिक जस्टिस क्रिएट करने आए हैं तो कैसे काम होगा? तो व्हाट रोल डज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर प्लेज? रोल तो तभी प्ले होगा ना जब मेंबर्स वैसे होंगे. हर कोई अपने अपने काम साधने आएगा, पॉलिसी बनाने आएगा अपने मतलब की, तो काम नहीं हो पाएगा, है ना. हेमा मालिनी बाहर कैंट प्योरीफायर, जो कि पानी एक नेसेसिटी का मुद्दा है, उन्हें नहीं उठाना चाहिए. Maintain a glossary book, that would be best. Start watching DNA. Yes, Nancy. आंसर राइटिंग में वोकेबलरी के लिए ग्लॉसरी, पॉलिटी की एक छोटी सी नोटबुक, इकोनॉमी की 10-10 रुपए की, आईटीसी की 20 रुपए की नोटबुक्स आती हैं, वो लगा सकते हो. कैन वी से दैट द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन सोशल इकोनॉमिक्स इज लिटिल सिमिलर सेंस एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? मीनिंग ऑफ जस्टिस इन सोशल और इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक है. ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, द जस्टिस विच परमिएट्स सोसाइटल एस्पेक्ट्स. Clear? So that was all for today, guys. See you tomorrow in the morning at around 9 a.m. from the studio itself for the daily news analysis. All right.
Thank you guys.